Good morning, students. Today I will revise the whole chapter of chapter number 14. Right? Firstly, we start the choose the correct option. First is which device produce electricity? कौन सा जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है? विच डिवाइस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी? जो इलेक्ट्रिक सेल हैं वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, विच डिवाइस यूज इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है? विच डिवाइस यूजेज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिक बल्ब आर यूजेज इन इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नेक्स्ट, in which of the following instrument is electric cell not used? In fuse there is not use in of a electric cell. Next, in which device heat produce is not desirable? कौन से डिवाइस में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डिज़ायरेबल नहीं है? इन विच डिवाइस हीट प्रोड्यूस इज नॉट अ डिज़ायरेबल? इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब. इन इलेक्ट्रिक बल्ब हीट प्रोड्यूस इज नॉट अ डिज़ायरेबल. Next, which device from the following works on the principle of magnetic effect of a electric current? Which devices from the following works on the principle of a magnetic effect of electric current? Answer is electric bell. Electric bell works on the principle of a magnetic effect of a electric current. Now, next one, on which effect of an electric current does a fuse work? जो फ्यूज़ किस में वर्क करता है? ऑन विच अफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट डज अ फ्यूज़ वर्क? इन अ फ्यूज़ वर्क इज एन ऑन अ थर्मल इफेक्ट. ऑन विच अफेक्ट? इन ऑन अ थर्मल इफेक्ट. नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट? वो किसने डिस्कवर करा था? HC और एस्टेड. हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट? HC और एस्टेड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स ऑफ automatically when current in the circuit exceeds the safe limit? Which of the following turns off automatically when current in the circuit exceeds the safe limit? तो आंसर इज MCB. आंसर इज MCB. नेक्स्ट, which are part of the electric bell? Hammer. Which part of the electric bell? Hammer. Next, filling the blanks. First is, in the bulb there is thin wire. In the bulb there is a thin wire called the dash, called the filament. In the bulb there is a thin wire called the filament. Next, the full form of MCB. The full form of MCB. MCB की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCB? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. ओके, नेक्स्ट, डैश आर यूज टू ओपन एंड क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट्स. डैश आर यूज टू ओपन एंड क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट्स. स्विचेस. स्विचेस आर यूज टू ओपन एंड क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट्स. क्या यूज़ करते हैं हम? स्विचेस. स्विचेस आर यूज टू ओपन एंड क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट्स. ओके, नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ CFL इज. फुल फॉर्म ऑफ CFL इज. द फुल फॉर्म ऑफ CFL इज कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स. कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स. Full form of CFL is compact fluorescent lamp. Next, longer line in the symbol for a cell represent its dash terminal. Longer line in the symbol for a cell represent its a positive terminal. Represent its a positive terminal. Longer line in the symbol for a cell represent its combination of two or more cell is called a dash.
The combination of two or more cell is called a battery. When current is switched on in a room heater, it dash. When current is switched on in a room heater, it produces heat. Next, the safety device based on the heating effect of electric current is called a dash. The safety device based on the heating effect of electric current is called a fuse. Next, true or false? First is 2 or 3 electric cells in a torch are arranged one after the other. It's a true. An electric fuse is used to save energy in the electric circuit. Electric fuse is used to save energy in the electric circuit. It's a false. Electromagnets are used in electric toasters and electric heaters. It also a false. To make a battery of 2 cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell. It's also a false. Next, when the electric circuit current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks. It's a true. Next, an electromagnet does not attract a piece of iron. It's a false. Next, electric bell. Now, one sentence answer. In one sentence, first question. How many terminals are there in electric cell? Which are they? How many terminals in electric cell? There are 2 terminals in the electric cell, positive terminal and the negative terminal. Next, which are the symbols for positive terminal and the negative terminal in the symbol of an electric cell? Which are the symbols for positive terminal and the negative terminal? In the symbol of an electric cell, the longer vertical line represents the positive terminal. जो longer vertical line है वो क्या करता है? वो represent करता है positive terminal, और thicker shorter line represent the negative terminal. Thicker shorter line represents the negative terminal. What is a battery? Proper combination of 2 or more cells is called a battery. Proper combination of 2 or more cells is called a battery. Next, when can the bulb connected in an electric circuit glows? The bulb can glow only when the electric circuit is in on position. The bulb can glow only when the electric switch is in on position. An electric circuit is closed and completed. Okay. Now next, what is a closed electric circuit? When the circuit switch is in on position, the circuit becomes complete from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. Such a circuit is called a closed circuit. जब circuit है. नेक्स्ट, व्हाट इज एन ओपन सर्किट? जब स्विच ऑफ होता है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है? वो ओपन सर्किट है. नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन 3-4 सेंटेंस. व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, a compass needle compact nearby gets deflected from its north south position. Explain. अब देखना है जो कंपास है वो डिफ्लेक्टेड होनी शुरू हो जाती है फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन. क्यों? जब स्विच ऑन है उसमें से करंट पास आउट होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? वो एक मैग्नेट का वर्क करना शुरू कर देगा. और जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाया जाता है, वो या वो अट्रैक्ट करता है या वो डिफ्लेक्शन करता है. अब ये तो कंपास नीडल एक कंपास के अंदर में है, तो क्या करेगी? यदि उस वायर के पास हम उस कंपास नीडल को लेके जाएंगे तो वो जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो वायर क्या है? वो एक
मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब उसको उसके पास लेके जाया जा रहा है, तो वो जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन करेगी, जो वो शो करता है, जो हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट को वो शो करता है। क्लियर? आगे हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट में जब वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास आउट होता है, ठीक है, जब वो ऑन, उनका जो ऑन पोजीशन में होते हैं, स्विच ऑन होता है, तो वो क्या होगा, उसमें से हीट जनरेट होती है, उस वायर्स में हीट जनरेट हो रही है, तो वो हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर डिपेंड ऑन मटेरियल लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड करता है। फिर जो नाइक्रोम वायर है बिटवीन टू एंड्स इन प्लेस ऑफ द बल्ब इन द फिर फ्यू सेकंड में देखोगे जो नाइक्रोम वायर है वो हॉट हो जाएगी। नाइक्रोम वायर्स गेट मोर हीटेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट फॉर मोर टाइम, वो और हीट हो जाएगी जब इलेक्ट्रिक करंट और पास करोगे। दस द वायर गेट हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, जिसके कारण वायर क्या हो जाएगी, करंट पास आउट हुआ और वो वायर्स हॉट होगी, जो हीटिंग इफेक्ट को वो शो करती है। फिर उसके बाद व्हाट इज एमसीबी कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, क्यों करते हैं, क्या है ये, हमारे जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है उससे हमें प्रोटेक्शन कर देती है। वहाँ पे मेन जो मीटर में इसको कनेक्ट करा जाता है, ये अब फ्यूज़ की जगह इसका यूज़ करते हैं। ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाती है जब सर्टेन लिमिट से जो सर्किट है, जो करंट है, एक्सीड हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो वो क्या है, वो ऑटोमेटिक जो एमसीबी वो ड्रॉप हो जाती है। फिर यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बेल में यूज़ करा जाता है, टेलीग्राफ में यूज़ करा जाता है, क्रेन्स में यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स को यूज़ करते हैं, फॉर मैनी टॉयज यूज़ करा जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। क्लियर? फिर डिटेल आंसर्स में बैटरी किसको बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इन द बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल्स कैसे अरेंजमेंट कैसे करा जाता है बैटरी में, तो वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। फिर ये कनेक्ट जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कलेक्ट करा जाता है तो वो बैटरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो बैटरी है हमारे एसी रिमोट्स में, रेडियो में, टॉर्चेस में सब यूज़ करा जाता है। फिर हमारे बहुत सारे टॉयज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो कई बार कुछ डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रिक सेल का अरेंज साइड बाय साइड किया जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं करा जाता, साइड बाय साइड करते हैं। जो जिसमें डाला गया है तभी वो ऑब्जेक्ट ऑपरेट होगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। फिर स्टोरेज बैटरी का तो आपको पता ही है कि स्टोरेज बैटरी आप ट्रैक्टर्स, ट्रक्स में यूज़ करते हैं। इसको ज़्यादा चेंज रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको 2-3 साल तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जब हाई स्पीड में मेरे को करंट चाहिए तभी हम ये बैटरी का यूज़ करते हैं हायर करंट के लिए। तो ये या तो आपको पता ही है, ये रेलवे कैरेजेस में, मोटर कार्स में, बसेस में, ट्रक्स में इस बैटरी का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट साइंटिफिक रीजंस थे, कॉपर वायर जो है नॉट यूज टू मेक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि क्या है उसका जो रेजिस्टेंस है वो लो है, इसकी वजह से उसका वो उसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो बल्ब क्या होगा, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस लो है, इतना ज़्यादा हॉट नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए, जिसके कारण वो ग्लो ही नहीं करेगा। इसीलिए फिलामेंट में कॉपर वायर्स का हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो लो है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब्स अब कनेक्टेड एज अ बैड सोर्स ऑफ लाइट, बैड सोर्स ऑफ लाइट है क्योंकि उसमें जो एनर्जी है वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, उसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, इसीलिए वो बैड सोर्स ऑफ लाइट है। फिर बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में बार मैग्नेट परमानेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी है, उसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते बार मैग्नेट की, उसकी हम स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। उसका यूजेस बहुत लिमिटेड हैं बार मैग्नेट के, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस बहुत वाइड हैं। क्लियर? तो फिर मैंने ये चैप्टर आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है, यहाँ पे मेरा ये चैप्टर फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।